خاندان ابو طالب پہ باواز بلند صلوات آل محمد محمد شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص شہید ولایت سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کی بلندی درجات کے لیے اپنے مرحومین بانی مجلس عزت مآب قبلہ و کعبہ کے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات کی تلاوت. ہر قسم کی آفات و بلیات بالخصوص موذی امراض سے بچاؤ کے لیے آل محمد کا کرم و فضل حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات کی تلاوت. محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین بالقاسم محمد المصطفى وعلى آلہ واولادہ والصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعن اللہ ولا اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم ومنکر عظمتهم ورفعتهم ونبوتهم وغیبتهم وحرمتهم وشجاعتهم وشہادتهم وولایتهم اجمعین. اما بعد قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حق الصلوات صلی علی محمد. ایک صلوات ایسی پڑھے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھی جائے. صلی علی محمد. اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے. سالانہ جلسہ ہے، سالانہ مجلس ہے. خدا وند متعال بانی مجلس چاچو جان کو مالک دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. ان کے مرحومین سمیت آپ کے مرحومین کو مولا حسین ابن علی کی جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے. مجھ سمیت ہر بیمار کو مولا صحت کلی عطا فرمائے. بالخصوص پوری دنیا میں صحیح العقیدہ مومنین و مومنات جو اس موذی مرض کی وجہ سے بیمار ہیں، مالک انہیں صحت کلی عطا فرما. بالخصوص پیر حبیب شاہ جی عزت مآب قبلہ و کعبہ انگلینڈ سے ہمارے ہر دل عزیز شخصیت قبلہ سرکار علامہ مولانا عاصم ولیتی صاحب تشریف فرمائیں، تشریف لائیں. مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. دعا گو ہوں رب العزت آل محمد کی عزت کا صدقہ ہماری عزتوں والی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے پوری کائنات میں اسلام کی عزت کی خاطر دین اسلام کے وارث کو اذن ظہور عطا فرمائے. ظہور امام زمانہ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہاتھ کھول کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت صلی علی محمد. آج کی اس مجلس سید الشہداء میں میں اس لاؤڈ سپیکر کا سہارا لیتے ہوئے، اس ویڈیو کیمرے کا سہارا لیتے ہوئے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ عالمہ غیر معلمہ صدیقۃ الکبریٰ نبی کی واحد و احد بیٹی کا حق پڑھنا چاہتا ہوں. سیدہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج ہے. حق جناب سیدہ وہ عنوان ہے، حق جناب سیدہ وہ گفتگو ہے، حق جناب سیدہ وہ ٹاپک ہے کہ مولوی چاہ کر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. صدیوں سے شیعت کی ضد میں بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولوی آنکھیں بند کر کے جان بوجھ کے اس حقیقت کا انکار کرتے تھے، لیکن یہ مشیت کا راز ہے
یہ जबर मशीयत है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अमर है कि मौलवी हक के सैयदा को छुपाना चाहता है, लेकिन ये जितना छुपाता है उतना ही नबी के उम्मतियों पे यह वाज़िया होता है कि मोहम्मद की बेटी कल भी सच्ची थी, आज भी सच्ची। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना, ऐसे नहीं हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। पढ़ना मैंने कुछ और था, लेकिन यहां पहुंचा तो हुक्म मिला कि आपने जनाब सैयदा पे गुफ्तगू करनी। सैयदादा उस पे गुफ्तगू करने की खास वजह है। वीडियो बन रही है? अच्छा बिस्मिल्लाह, अपने बैठे हो, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। लाइव चल रही है जी, मौला आपको सलामत रखे। वीडियो भी बन रही है लाइव। चंशा जी आपकी ड्यूटी है, आपने क्लिप बना लेना है और सोशल मीडिया पे आपने डाल देना है, ताकि मैं मौलवी को आज जवाब देना चाहता हूं। पीर हबीब शाह जी आज की मजलिस, मंजूर शाही सरकार, आज की मजलिस जो है ये हो सकता है इसमें मुझे दाद की भी जरूरत ना रहे और दाद मुझे चाहिए भी नहीं। और जी बिस्मिल्लाह, आज मुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद की इमदाद चाहिए, भाईजान दाद नहीं चाहिए। बलैती साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। सर थोड़ी सी गुफ्तगू मिंबर किबला के हवाले में अपनी कौम के बच्चे और बिलखसूस गैर शिया भाइयों से गुफ्तगू करना चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोग हैं जो गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं। चुप कर गए हो यार। अच्छा बुजुर्ग ना बोलन कोई गल नहीं, मैं दुख कोई नहीं। ये जो नौजवान नस्ल है ना जी, ये नौजवान नस्ल खास करके बेटा आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिनका मकसद आपके पाकिस्तान को बर्बाद करना, आपके पाकिस्तान को कमजोर करना, आपके मुल्क का सत्यानाश करना है। वो ऐसे लातादाद अफराद हैं, और अगली बात कान खोल के सुनिएगा, उनमें से ज्यादातर तादाद मौलवियों की है। नहीं, इस गल पे हर बंदा नहीं बोले। आप पीर हबीब शाह जी वो सिर्फ मौलवी नहीं है, वो सिर्फ मौलवी नहीं है, लेकिन उनमें ज्यादातर तादाद मौलवियों की है। और वो मुल्ला जो है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान का अमन खराब हो, लोग दस्तो गिरबां हो। सन 1984 के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा शिया सुन्नी फसाद करवाया गया, इमाम बारगाहों को आग लगवाई गई, मस्जिदें शहीद करवाई गई, शियों को सरेआम कत्ल किया गया। बच्चों को नहीं पता, बुजुर्गों को पता है, मेरी बात की तईद फरमाएंगे। नौजवानों को कत्ल किया गया, बसों से उतार कर नौजवानों को शहीद किया गया। लातादाद इमाम बारगाहों में बम ब्लास्ट हुए, कुरान जलाए गए, अलम जलाए गए। ये मैं बात कर रहा हूं सन 1984 की। मुल्ला उस दौर में नाकाम हुआ, इस दौर में मुल्ला फिर चाहता है कि 84 वाले हालात फिर पैदा हों। मैं अपील कर रहा हूं इस लाइव चलती हुई मजलिस का सहारा लेते हुए कि मौलवी ये चाहता है कि 84 वाले हालात फिर पैदा हो, जिसके लिए वो सबसे पहले जमीन हमवार करता है। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। पिछले अरसे में सरकार हजरत कायम आले मोहम्मद की बारगाह में गुस्ताखी की गई। जमाली नाम के मलाउन ने हमारे इमाम जमाना की गुस्ताखी की। बेशुमार कर सकते हो, ये भी कोई नहीं। एक बेशुमारी ताड़े को ऐसी मेरे ख्याल वो भी कोरोना लै गया है। बेशुमार कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जमाली मलाउन के बाद मार्केट में जलाली मलाउन आया। जमाली के बाद आया। इस जलाली हरामजादे ने सरकार हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, और इसने कहा कि हजरत अबू तालिब ने नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफर नाबाशद कलमा नहीं पढ़ा। हमने इसे चैलेंज किया, मैंने इसे चैलेंज किया, हमारे मसलक के उलमा ने चैलेंज किया, बिलखसूस अहले सुन्नत भाइयों के उलमाओं ने इसे चैलेंज किया कि सरकार इमरान के खिलाफ मत भौंक, तू अपना बता, तेरे बड़ों ने कलमा कहा। जिसे समझ आए उसका बाजू बुलंद होना चाहिए। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना कर। मैं किबला
कि अपनी कौम के बच्चों तक पैगाम पहुंचा सकूं। इसने सरकार हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की। इसको जितना शियों ने जवाब दिया उतना ही अहले सुन्नत भाइयों ने जवाब दिया। आप परेशान हो गए, आप घबरा गए मेरे ख्याल से। हमारे मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कोई नहीं और ना कभी शिया सुन्नी फसाद हो सकता है। शिया सुन्नी भाई हैं। जो बंदे हैरान हो के मुझे देख रहे हो, तुम सोच रहे हो कि अगर जमाली जलाली सुन्नी नहीं तो फिर क्या है? खबरदार, मौलवी अशरफ आसफ जलाली सुन्नी नहीं, इसने सुन्नियत का लबादा ओढ़ा हुआ है। ये नासबी है, नासबी। उन परेशान हो गए। नासबी वो जो आले मोहम्मद के साथ दुश्मनी रखते। सबसे पहले ये नासबी है, उसके बाद ये खारजी है। ये सुन्नियों से निकला हुआ एक अलहदा फिरका है। कई बंदे परेशान हो गए। मैं ये सीना अपना इसलिए संभाल कर रखा है मैंने कि यहां मैंने खानी है इश्क अली में गोली। ये मौलवी अशरफ आसफ जलाली मलौन इनू एदी इन्नी मां नहीं जानती जिन्ना मैं जानना। ये मुझे भूल गया होगा, मैं इसे नहीं भूला। मैं आज मौलवी से दो बातें करना चाहता हूं। मौलवी अशरफ आसफ जलाली, मेरा नाम हामिद रजा सुल्तानी है। मैं मुफ्ती मोहम्मद नवाज रिजवी का बेटा हूं, जो कोटली पीर अब्दुल रहमान बागबानपुरा जामिया मस्जिद गौसिया बोर्ड वाली के खतीब थे, जिन्होंने कम अज कम 300 से ज्यादा लोगों को कुरान पढ़ाया और हदीस पढ़ाई। जो प्रिंसिपल थे जामिया मुजद्दिया रिजविया के, मौलवी अशरफ आसफ जलाली, तू मुझे भूल गया, मैं तुझे नहीं भूला। मैं तुझे तब से जानता हूं जब तूने दरोगे वाले के अंदर एक मिल ओनर से खैरात में जगह लेके मदरसा बनाया था और शाह अहमद नूरानी ने तेरे मदरसे का इफ्तिताह किया था। मौलवी, आज तू शियों को काफिर कहता है, तुझ पे भी लानत है, तेरी मां पे भी लानत है, तेरे बाप पे भी लानत है। मौलवी, उस वक्त शिया मुसलमान कैसे थे जब तेरा भाई आबद जलाली वोट लेने के लिए इमाम हुसैन के नौकरों के पास जाता। इस मौलवी अशरफ आसफ जलाली का छोटा भाई मौलवी आबद जलाली बैठे या ठहर गया सारे। मुतहिदा मजलिस से अमल, ये गल्लां असीं नहीं करनी है तो किस करनी है? कई बंदियां नूं गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। एक दो बंदियां मेरे नाल ही राबता कीता, सुल्तानी साहब हाथ थोला रखिया जी। मैं क्या क्यों? इत्तेहाद है बैनुल मुस्लिमीन। मैं कहा लानत हो जाए इत्तेहाद ते, जिसमें बंदा बतूल की गुस्ताखी बर्दाश्त कर ले। नहीं चाहिए हमें ऐसा इत्तेहाद। अगर तुझे इतनी ही बतूल की गुस्ताखी करने का शौक है, अदालत तू कायम कर, बुला मुझे, तेरी कद से ज्यादा किताबों का हिसाब लगा के साबित ना करूं, मेरा बाप भी कोई नहीं। तू कहता है मोहम्मद की बेटी से खता हो गई, अदालत में बुला, मैं तुझे बताऊंगा 40 साल बुत पूजने वाले खता पे थे या मोहम्मद की बेटी खता में। हाथ बुलंद करके चुर्रे से हैदारी। थकावा नारा नहीं चाहिए भाई। ज़हरा के मुकाबले में मौलवी जिसे तू सच्चा साबित कर रहा है ना, उसका बाप भी काफिर था। चुप कर गए हो जिवें तुहानू पता कोई नहीं मैं किहदा जिक्र कर रहा। मैं ओदा ही जिक्र कर रहा जिन्हों सारी जिंदगी सूरह बकरा याद नहीं हुई। जो उसे मोहम्मद की बेटी के मुकाबले में इब्तिदा मौलवी तूने की है, हमने नहीं।
حبیب شاہ جی ہم نے نہیں، ہم نے آج تک مقدمہ فتق پڑھا، ہم نے نام نہیں لیا تیرے پیروں کا. تو نے بطول کو کہا کہ خطاب پہ تھی، ہم اب نام لے کے بتائیں گے تیرا کون کون سا پیر زہرا کا مجرم ہے.